सर एक मिनट आए, सर एमएच करना माइक 2 मिनट मेरे को दे दोगे, मैं आपको नहीं आप बैठेंगे ना, नो प्रॉब्लम, नहीं यू सिट मैडम बैठो, इधर आओ, लो सर, इधर आओ। ठीक है जी। Where is the mic? Mic कहाँ mic? आगे कर दो, आवाज नहीं आएगी। Cordless mic नहीं है? जरा भारत एक कुछ वाला आगे कर दो। ये वाला? बूढ़ा साहब का चेहरा, बूढ़ा साहब का चेहरा उसे थोड़ी आएगा चेहरा। आवाज चाहिए, आवाज थोड़ा ऊंचा बोलिए। बोलने की ऑथराइजेशन और दे रखी है। सर शुरू करिए। Thank you for all of you. You have been waiting for us. We are very sorry that we lost a Rajya Sabha seat, a very senior leader of the party and the country. We fully take up the responsibility. The Honorable Chief Minister has taken up the responsibility. सर आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा तेज बोल लेंगे या फिर माइक आगे कर लेंगे? थोड़ा कुर्सी आगे कर ले, कुर्सी आगे कर ले, कुर्सी आगे कर ले, बस हो जाएगा। टेबल नहीं लाओ, टेबल मत हिलाओ, थोड़ा तेज बोल लेंगे तो आ जाएगी सर। आवाज धीरे बढ़ेगा भाई। I will speak in English, then my leader will speak in Hindi. You speak in Hindi. So I am very sorry that on behalf of the workers of this country was watching this Himachal Pradesh Rajya Sabha election. So in this Rajya Sabha election we lost a very senior leader, and I think our Honorable Chief Minister accepted that some failure has happened, but it will not continue further. We have spoken to all the MLAs personally. We have spoken to the PCC President. We have spoken to the Chief Minister. Still one round of discussion also will happen later. So all of them have sorted out all their differences. They will work together. They will see that in the Lok Sabha they come out with a good numbers. And there is no, we are forming a coordination committee between the party and the government with 5 to 6 members, with PCC President, with Chief Minister, Deputy CM, and other members we will announce from the Delhi, the coordination committee, which should be formed between them. And all of them have assured, taken a oath at any point of time, they will all work together to save the party and save the government. There is a big hush-push going on from the BJP side, creating a lot of news, but the numbers can be seen that everyone is united here, so there is no problem. So Honorable Chief Minister has agreed that he is taking everyone together. The PCC President also had conveyed solid support to the government. The party and the government and the MLAs and the ministers will work together. Rest our Honorable former Chief Minister, Mr. Huda ji will explain to you. Then my CM and CLP will speak to you. देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर
व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है। हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया, मुख्य तौर पे यही बातें। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन होगा सर? कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 अन्य और मेंबर होंगे। आला कमान से वो दिल्ली से अनाउंस कर देंगे। They will only give the PCC president and will give the names. इनसे ये देख They will give from the organization side. वो देंगे कोई They will विधायक give the names. They have already given the names, but I don't want to disclose here. We will announce from the Delhi. इनका काम क्या क्या रहेगा सर? जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसा है, इनका काम रहेगा आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना। और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू, यू विल नॉट गेट एनी न्यूज। सर क्या सुक्खू जी सीएम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे? 5 years there will be a Congress government and our honorable Chief Minister Sukhu is sitting adjacent to me. Sukhu ji will continue till for 5 years? See, I am telling you, we have a Congress government. I say, Congress. Rest of All MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Sukhu, which was been proposed by PCC President. Simple it is. जो सर बीजेपी ने ऑपरेशन चलाया था उसको लेके क्या कहोगे आप? They are doing lot of operation. They will do daily. They don't have any work. They will do daily. तो All MLAs know that. बीजेपी ने अभी ये अपने सभी विधायकों को ये कहा कि सारे काम छोड़कर 25 के 25 विधायक शिमला चले जाए। लग ऐसा रहा है कि they are cooking something. What do you think? What's your opinion? Nothing to worry. Let them cook anything. Let them waste their time. लग रहा है कि ऑपरेशन now party stands united. No Operation Lotus here. On the disqualification of six MLAs, BJP is saying it is illegal. They are moving to the court. See, That is speaker decision. it is the speaker decision. In what way BJP is affected? BJP, it is not BJP MLAs. Congress MLAs at the floor of the house. It is not on the floor. On the floor of the house, it has taken. On the eyes of the speaker, on the eyes of your camera, everything has been done. It is the speaker decision. We don't want to interfere with the speaker decision, whatever has been happened. As a parliamentary affairs and a chief whip, he has filed the objection. The law is within the hands. We don't want to intervene with the law of the land and the decision of the speaker. It is जो 6 विधायक हैं जो बागी हो गए, इनसे बात करने की कोशिश की थी आपने? Let me not speak much on this. My PCC president will speak. Madam. question. बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर देश के नंबर 2 या 3 पर जो आते थे, उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था। उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके। उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा के चुनाव है। उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे और अंततः इन 4 सीटों में विजय हासिल करें। प्रतिभा जी, क्या पार्टी अभी मजबूत स्थिति में, अगर अभी की बात करें तो? पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। आपने जो इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमान के सामने, वो इश्यूज के एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि ये आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं। हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे,
ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। मैम Are इसके you लिए आप happy with सेटिस्फाई हो? the committee, and do you think your issues would be addressed after this? अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी, जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा, जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी, और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उस पर क्या। विक्रमादित्य जी ने जो रेजिग्नेशन दिया था उसका क्या? He has already withdrawn the resignation. He is working here. He will be attending the cabinet. Very young Matter man. ended yesterday only. Yesterday the Why are you matter- putting today? Okay, thank you. We have to go to the flight. Okay. My CM, please. अब जब सब कुछ सही हो गया है, बोलने दो क्या पहले। क्या कहेंगे सर आप? क्या वो बोल रहे हैं हिंदी बोलेंगे ना। सबको बोलकर सब कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या आपको ऐसा क्या प्रॉमिस किया गया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप 3 मिनट से बोल रहे हैं। नॉर्मल है सर, क्या कहेंगे आप? राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था, और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ आई। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाई कमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज़ चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज़ चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मेजॉरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आजाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब हमारी वोटिंग हुई, पूरा हल्ला किया उन्होंने। पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। सीआरपीएफ आई यहाँ, हरियाणा पुलिस आई यहाँ, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे। विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने, और उसके बाद देखिए हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था, मार्शल के साथ उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था। और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी, वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। वो क्यों नहीं आए? उनको डर था, क्योंकि वो चुरा कर विधायक लेकर अभी भी हरियाणा में ठहरे हुए। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। मैं आज फिर भी कहता हूँ, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की ओछी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजॉरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। थोड़ा सा मेरा सवाल रह गया, आप यहाँ आके बातचीत करने विधायकों से, तो जो 6 विधायक है उनसे संपर्क हुआ था आपका? मैं एक बात सर, 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है, जो हरियाणा में बैठे हैं सर, जिनकी जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है।
आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूंगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है। उनके टेलीफोन नहीं लिए गए जी। उनके हमारे उनकी पत्नियां देखिए, उसमें से 2 विधायक की वाइफ्स मेरे घर में आए, मुझसे मिले। तो जी आपको नहीं लगता ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि देखिए कहीं ना कहीं हमारा ले ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम शराफत में ज्यादा रहे। ऐसा है, सबने सबसे पहले बता दिया जो वहाँ हुआ है और उसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ले ली है। और ये राज्यसभा का इलेक्शन में मेरी अपनी भी कमी रही, पर इंटेलिजेंस की भी कमी रही इसमें। He has taken the responsibility, I said you straight. At the same time, discipline is very much important in the party. First, the priority of this party is discipline. Priority of this government is discipline. All will be with united. They will work unitedly with discipline. Thank you. गलती माफ की जा सकती है। अगर आप ऐसे गलती माफ की जा सकती है। सर चल सर क्यों नहीं हुआ? एक मिनट प्लीज रुक जाए, आगे सब कोऑर्डिनेशन कमेटी पार्टी में और सरकार को कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ सत्येंद्र चौहान, शिमला, आज तक। अतुल दोबारा कर। प्लीज सर, प्लीज सर, दोबारा करिए प्लीज सर। नहीं मैं समझ गया आपकी बात। सर प्लीज आ जाइए, प्लीज सर, प्लीज सर, थैंक यू सो मच भाई। प्लीज काइंडली आप वहीं से प्लीज सर, प्लीज। हमारी मजबूरी है।